Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Page number 243. All of you see page number 243, social justice and marginalized. Social justice and marginalized. Can you see the chapter name? Yes. And Yes. safeguarding the marginalized. Both chapter are linked to each other. And this chapter is going in the, will be coming in project, isn't it? You can do as much as project from this chapter. So let's see what is there in social justice and marginalized. As we can see the topic, you can understand by the word meaning the social justice. Social justice मतलब क्या हो सकता है? सामाजिक न्याय. सामाजिक न्याय. Yes, ma'am. सामाजिक न्याय. अब यहाँ पर बात आ रहा है कि हमें सामाजिक न्याय देना है तो किसको देना है? We have to give the social justice to those persons who have been marginalized in the chapter, in the society. Now, can you guess how this person may be marginalized? वो कौन होंगे जिनको हमने marginalized करके रखा हुआ? Ma'am, look the poor man, look. हमने illiterate सीमा poor. रेखा बना दिया है. हाँ, मैं बता रही हूँ. हमने खुद समाज में एक रेखा बना दिया, सीमा रेखा बना दिया है कि ये लोग मार्जिनलाइज लोग हैं. ठीक है. अब हमको देखना है कि वो कौन लोग हैं जिनको हमने मार्जिनलाइज किया है. लेट्स स्टडी अबाउट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, prosperous a democratic form of society. It a principles of a democratic form of society also, and the formal framework of the democracy is of no value and would indeed be a misfit if there was a no social democracy. Yes, very well said. हम अगर बात करते हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर जो भी हमारा सोसाइटी है, अगर वो प्रॉस्पर नहीं कर रहा है, अगर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, और हमारा जो ये फ्रेमवर्क है जो पूरी तरह से वैल्यू लिए हुए डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या है? वैल्यू फॉर व्हाट? For society. Value for society. And if we see that there is in our society, people are marginalized and people are not cared by each other, then there is no use of democracy. There is no use of democracy. So what initiative we have taken in a democratic setup and in a democratic government, let's see. All of you are here. Harshvardhan Chandra, Aditya Raj Kondelye. You are also wearing the muffler and cap. Don't be shy. You are looking very nice. And those who are not in cap, negative marks for them. Isn't it? Now see, India opted for a soaring secular and a democracy and attaining an independence. हमने शुरू में ही बोला कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर ए सॉर्गिंग एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री. सॉर्गिंग भाईचारा के बारे में हमने सबसे पहले कहा, और हम डेमोक्रेसी को और एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का हम बात भी कहते हैं, और इसको हम इंडिपेंडेंट रूप से लेते हैं, इसको हम स्वतंत्र रूप से लेते हैं. तो ये कौन सी बातें हैं? केवल कहने से नहीं होगी. I said and the things is over. Tell me. No, ma'am. Ma'am, we have to work on it. हमने बोल दिया. हाँ, हमने बोल दिया. Aditya Raj Kondelia. One boy was there. I don't remember the name. He was saying me that, madam, this chapter is not completed and not taken up. And now I don't know whether he is there in the class or not. So the Indian Constitution gave an equal right to every citizen and also recognize the need of a safeguarding the interest of those who had suffered at the hands of so-called the higher castes. Or you can say the rich. Where are you, all of you? You're not in camera. I'm in camera.
Something is going wrong in today's connectivity. Hello, I'm very sorry for this. All of you, are you hearing me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm audible Yes, Yes, to ma'am. ma'am. all of you or Yes, not? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. You're ma'am. audible to us. Yes, ma'am. What happened when the shameful concept of caste was done away and the policies of the government, laws and other administrative measures aim to uplift the condition of the downtrodden people and the marginalized section of the society to achieve the ideals of social justice as laid down in our constitution. And you have read in the chapter 16 that the preamble, the spirit of the constitution clearly mentions that is the social justice, social, economic and political. Justice means what? Social, economical and political. तीनों justice मतलब न्याय मिलना है तो किसमें मिलना है? सबसे पहला समाज में, सोशल में, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में, Economic. राजनीतिक परिस्थिति में, पॉलिटिकल, तीनों जगह जस्टिस मिलने. Then we'll talk about the liberty of thought. What is liberty of thought? Only to say the story. No, ma'am. No, No. ma'am. आपने बोल दिया, सोच लिया, हो गया. No. No. लिबर्टी आप सोच सकते हो जितनी उड़ान आपको भरनी है. I always take the example of our late president APJ Abdul Kalam, that he APJ has Abdul been Kalam. rejected. Yeah, APJ Abdul Kalam, that he has been rejected in an Air Force exam, in the medical exam of the Air Force, and he became the president of the 3 of defense, isn't Yes, it? ma'am. So Yes, he ma'am. was, at least he was having a small thing, and you know the background of APJ Abdul Kalam. He must be Yes, having ma'am. that thought. वो लिबरल सोच रहे थे, एक्सप्रेस उन्होंने किया होगा जरूर. उनको पकड़ के तो कोई नहीं लेकर आया होगा. लाया है क्या किसी ने उनको पकड़ के? No, ma'am. नो. जैसे मैं अंकित राज को पकड़ के लेकर आती हूँ, जैसे मैं अंकित राज को पकड़ करके लेकर आती हूँ, तो क्या अब्दुल कलाम जी को भी क्या किसी ने लाया होगा? क्या नहीं ना लाया होगा बच्चा? No, ma'am. तो अब पता चला कि तुम कल एयरफोर्स के बड़े आला अधिकारी हो गए, फिर बोलोगे कि मैडम ने तो मुझे बोला था कि मैं ही भागता था. So you must have the thought, then express it, then belief. Whatever you are having the belief, that should be your own faith and worship. आप कोई भी faith करते हो God और worship करते हो, it's of your own. है ना? अब बताती हूँ इसका एग्जाम्पल कि वो ओन कैसे हो जाता है, अपना कैसे हो जाता है. आप समझते, एक समय में एक जो वही इंसान जो होता है, जो पूजा करने समय बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, मगर जब एक एज के बाद में हम देखते हैं कि उसमें भी बहुत सारी वो कटौती करते रहते हैं, एंड यू फील वेरी शॉक, है ना? तो हर तरह से क्या होता है, थोड़ा अपने मन से भी लोगों का फेथ और वर्शिप पे डिफरेंस आने लगते हैं समय के अनुसार, है ना? तो ये चीजें बदलती रहती है अपने आप. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यू आर गेटिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी थ्रू द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये नहीं कि केवल आप इंसान है तो आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बल्कि ये हमारे कानून में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि यू ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ society. Fraternity assuring the dignity of the individual. Fraternity भाईचारा आपको हर किसी का, हाँ, all are equal. Amrita Sharma is there or not? I can't find Amrita Sharma. Are you there, Amrita? Amrita? Amrita Sharma. Gyaneshwari, Anurag, Soumya, how many children are there? But they don't come online. Why? I don't know why. And in front, back, they will ask the chapter name. It is true that the social justice, individual right, equality of opportunity, and public participation in decision making make a successful democracy. But even after 70 years of attaining the independence, we have not achieved the goals of social and economic justice, and are still working towards the creating an environment where everyone can live with dignity and honor. हम बात करते हैं सोशल जस्टिस का, इंडिविजुअल राइट्स का बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का बात करते हैं,
पब्लिक पार्टिसिपेशन का बात करते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग का बात करते हैं, तो इसलिए भी करते हैं कि ताकि हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो, है ना। सो डू यू थिंक दैट ऑल द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन फुल विगर? सारे लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? No, ma'am. No. कहीं पे भी तो कुछ कमी होती है, और जब तक हम सभी लोग साथ मिलकर के नहीं चलेंगे ना, तब तक हमारा डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा। Isn't it? Because our society is that society where everyone needs the dignity and honor. Isn't it? Yes, ma'am. It's not that honor that you're going to put a shawl like this for your friend, that I am going to honor you. Isn't it? It's like that you are going to honor each and everyone in the society, whether you are in school or you are at home or workplace or in public place. Isn't it? Honor आपको इज्जत देना है, बोल के करना है, अपने एक्शंस में करना है। हम सबको, जैसे अगर किसी अच्छे आदमी को अगर देते हैं, तो अगर कोई पुअर है तो उनको भी वैसे ही रिस्पेक्ट करें, ट्रीट सबको इक्वली करना है। बिल्कुल, हाँ, इक्वली करना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल वेरी बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो एजुकेशनली, नो डाउट, स्टिल बैकवर्डनेस है ना? इंडिया में, यस मैम, इंडिया में है स्लम एरियाज देखे होंगे, विलेज एरियाज में भी देखे होंगे, और हम देखते हैं कि किसी भी विलेज में हम जाते हैं तो कुछ छोटे तबके के लोग, कुछ बैकवर्ड कास्ट के लोग, वो गांव के बाहरी इलाके में ही वे लोग खेलते हुए, बच्चे रोड पे खेलते हुए नजर आते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर ये इस टाइप के गरीब, और कपड़े भी थोड़े ठीक से नहीं पहने, ये लोग यहाँ पर क्या करते रहते हैं। तो पता चला कि गांव के बाहरी हिस्सा में उनको रहने की व्यवस्था की गई है। जिनको कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, और जब कुछ लोगों को खोजा जाता है तो बोलेंगे कि भाई गांव के बाहर में जो नहर के पास में है, वो लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा फील होता है, अच्छा वो लोग वहां क्यों मिलेंगे। Even I can ask, no, if I have not seen the thing, इक्वली तो पता ट्रीट चला कि नहीं हाँ, किया जाता है, उनको अलग ट्रीट किया जाता है सबसे। वो वहां क्यों मिलेंगे, वो तो काम भी करते हैं, तो वहीं पर मिलते हैं सारे वो काम करने वाले लोग। मैंने भी सोचा था, ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर के पॉइंट पे, आप आ जाइए। मैं बड़ा, आई ऑलवेज टेक माई चिल्ड्रंस वेरी स्लोली टू द टॉपिक, and those who are listening, they can guess it that how slowly I am taking to the point, isn't it? So here we can talk about everyone needs dignity and honor. Have you seen, just go near to them and do the things, yes, which you can see the smile on their face. yes, ठीक है, मगर यहाँ तो टाइम ही नहीं है किसी को, all are running, yes, isn't it? All are running. So let's see now what happens. These victims of backwardness compose the present scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes, that is known as the OBC, and many minority groups are suffer from the backwardness and they are called marginalized groups. yes. ये जितने भी लोग जो है हमारे समाज में हमको दिख रहे हैं, जो हमारे हमने उसको देखा कि वो बाहरी इलाकों में रहते हैं, गांव के क्षेत्र में, और हमने उनको अलग थलग करके रखा, उसमें हमारे आते हैं SC, मैम, ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी। अब हम इस बात पे भी बात करें, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड माइनॉरिटी में हम आ जाते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके, सबसे बड़ा भारत को बंटवारा करने का यही मुद्दा उठाया था लोगों ने कि हिंदुस्तान, हिंदुओं को छोड़ करके भारत में जो भी लोग है वो सारे लोग माइनॉरिटी में आ जाते हैं, सारे माइनॉरिटी में आ जाते हैं।
और उसमें मैम हमारे यहाँ तक minority हिंदू के बारे आप उठा लो, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला है मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम है। क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी, सिख, मैम सिख है मैम, तीसरे बौद्ध, जैन, मैम इंडिया सेक्युलर कंट्री है। तो इन सबको हमने ये सब आप मार्जिनलाइज के श्रेणी में आते हैं, हमने उनको मार्जिनलाइज नहीं किया है। वे खुद से सोचते हैं कि नहीं हम मार्जिनलाइज हैं, हम माइनॉरिटी खुद की हैं थिंकिंग और की हम वजह से वैसे मैम गवर्नमेंट में तो उनके लिए कितने सारे एक्ट इंडियन है मैम, कोई शेड्यूल रिलीजन कास्ट, यस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर देयर। शेड्यूल उनके ट्राइब्स लिए भी हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स चीज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भी आपने देखा होगा कि ये हमने उनके लिए भी बहुत सारे चीज किए गए हैं। दे आर चेंजिंग देयर रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी फॉर द बेनिफिट इन द सोसाइटी। ऑल मेनी माइनॉरिटीज यस मैम, किसी को नहीं रोका। उन लोग को लगता है कि अगर हम लोग अपना वो रिलीजन चेंज करेंगे तो उन्हें थोड़ा ज्यादा मिलेगा। वो तो ब्रिटिश पीरियड में ही मिशनरीज स्कूल का आने का सबसे बड़ा यही था कि इफ दे वांट टू चेंज देयर रिलीजन। यस मैम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन, सिख, मैम ये सब बस कहने के लिए है, ऐसे सब तो ह्यूमन ही बीइंग है। हाँ, yes. Now marginalized groups are those sections of the society which have remained ignored in the past due to the several social economic situations, and the marginalized groups were forced to live on the fringe of society or were excluded from it, and these groups suffer from the isolation and social discrimination. And let us now study more about the marginalized group in detail. Listen, this is said that we have been marginalized to them and they are living a very isolated life. But let's see, in today's the things should be not only going for the few peoples. बहुत सारी चेंजेस आई है, क्योंकि इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज या जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जो भी रिजर्वेशंस को हासिल किए या जो भी चीजों को हासिल करने के बाद में अब वो बहुत ही शिक्षित हो गए हैं, उनके पास में भी बहुत पैसे हो गए हैं, अब वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं। किस लेयर में आ गए हैं? कि सारा चीज है उनके पास में, घर भी है, मकान भी है, जॉब भी है, पैसे भी है, सब कुछ है, तभी भी अगर वो फैसिलिटी करना चाहते हैं, रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, स्टिल दे वांट द फैसिलिटी, तो वो क्रीमी लेयर में आ गए। तो आप उनको बोलोगे कि नहीं भाई आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा पैसा है? यस सर, बोल सकते हो क्या? yes. नहीं बोल सकते हो। Will not go into that, but things are changed. It's not no more, it is not laying like this. Many things has been there. Now let's study in detail about this scheduled caste and scheduled tribe. Scheduled caste and scheduled tribes people, the caste of the Dalit and the Adivasis, you can say the tribals, which are listed in the Constitution of India, are known as a scheduled caste and scheduled tribe, respectively. Now our constitution framer realized that the development of India was possible only if all section of the society were uplifted. ये तो हमारे गवर्नमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर का ही थॉट था, बी.आर. अम्बेडकर साहब जी का। महाराष्ट्र जो में मैंने देखा है कि one maid servant was there, she came for cooking, and I said that कि किस भगवान वर्ल्ड का को सबसे मानती बड़ा हो? स्लम महाराष्ट्र में है। यस मैंने मैम, पूछा धारा कि आप यस मैम, किस Yes, भगवान ma'am. को मानती हो? तो उन्होंने मुझे सीधा कहा बाबा साहब, हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं। मैंने मैम किस बाबा साहब को? बी.आर. अम्बेडकर को, अम्बेडकर बाबा को, वो हमारे भगवान है। यस मैम, ठीक है, कहा उन्होंने। तो मुझे लगा कि ना ड्यू टू रिजर्वेशन दे आर ट्रीटिंग बी.आर. अम्बेडकर एज ए बाबा साहब एंड बाबा इज देयर गॉड। यस मैम, मैं महाराष्ट्र की बात बता रही हूँ, पुणे रीजन की बात बता रही हूँ। तो क्योंकि कईयों के वहां पर ना बाबा साहब इज द गॉड। अब वो बाबा साहब कोई और नहीं, हमारे अम्बेडकर जी हैं। बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं
अब आपको एक चीज पता चल रहा है ना किस प्रकार हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। यस मैम। Yes, ma'am. इतना तक पता चला ना कि Yes, हर ma'am. चैप्टर एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हर चीज में पड़ती है, हम हिस्ट्री Yes. में हिस्ट्री में भी, सिविक्स में भी, History is थोड़ा सा ज्योग्राफी। हाँ, Yes, तो ma'am. वो चीजों को ध्यान देंगे आप ना। इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेजेस communities of India and called Dalit, Harijans, or you can so-called untouchables are known as a scheduled caste. Who are these scheduled castes? These scheduled castes are known as a Dalit or Harijans, or you can say the untouchables. Harijans, the name was given by Mahatma हम Gandhi. B.R. Ambedkar भी हाँ, untouchables गांधी। हाँ यस है, मैम। तो वही तो भारत का उनके कॉन्स्टिट्यूशन साथ भी बना बहुत दिए। सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था मैम। स्कूल में हुआ उन्होंने था, रिजर्वेशन वाला किया। स्कूल में हुआ था उनके साथ में। वो स्कूल में नीचे बैठते थे अलग यस से, मैम, स्कूल अबुल में उनको कलाम जी मैम पर बैठते थे। बहुत आप गंदा सबकी ट्रीट किया जीवनी जाता था। पढ़ो, मैंने पहले ही कहा आपको। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर बने, और ये जितने भी थे हमारे दलित कहलाते थे, अनटचेबल, शेड्यूल कास्ट, दे इंक्लूड पीपल हु आर अब इसमें कौन कौन से थे, वो लोग को हम क्यों बोलते कि अनटचेबल्स थे या हरिजन थे? क्यों? क्योंकि वो करते क्या थे पीपल, वो कौन से काम करते थे जो कि बहुत जरूरी है, और बिना उनका तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। और फिर वो कैसे अनटचेबल्स हो गए? मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही थे। सबके अगर हम लोग थिंकिंग का की वजह से। डेली लाइफ में अगर देखे तो उनसे ज्यादा लेदर के चप्पल अगर आज हम नहीं पहनेंगे, वुडलैंड का शू नहीं पहन रहा है कोई, तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो बोलते कि नहीं ये तो ब्रांड वाला वुडलैंड का शू है, हम लोग पहनेंगे जरूर। वुडलैंड ही मैम और लेंगे बाबा आज। आज हुए थे। शिवांगी तो वुडलैंड ही लेगी, एकदम वुडलैंड छोड़ के कुछ नहीं यस लेगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव हर्ड दोस पीपल, जो कई लोगों ने ये बाइकाट किया था कि हम लेदर का शूज नहीं पहनेंगे, हम लेदर का बेल्ट नहीं पहनेंगे, हम तो खड़ाओं पर चलेंगे, हम लकड़ियों के चप्पल पे चलेंगे। आज वो समय रह गया है क्या? आज तो वो No, समय no, नहीं रह मैम। गया। अब सबको तो लेदर ये चाहिए। लोग थे, हाँ, लेदर वर्कर्स, स्कैवेंजर्स। आई टेल यू हु आर स्कैवेंजर्स, आई टेल यू, जो मैला धोते हैं। लेदर वर्कर तो पता ही है, जूता चप्पल बनाने वाले, और जो मैला धोते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। टेनर्स, फ्लेयर्स, कॉबलर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिर ड्रम बीटर्स, ड्रम मैम जो बीटर्स, हाँ, जो जो ढोल बजाते हैं, है ना? तो ये फोक म्यूजिशियंस, isn't it? Street handicraft persons also, जो सड़कों पे हैंडीक्राफ्ट का काम करके जो लगाते हैं ना, ये बुनकर लोग, तो उनको भी हमने उस श्रेणी में डाल दिया। ये जो मिट्टी का मटका बनाते हैं, जो ठंडे के मौसम में हम लोग फ्रिज का पानी जरूर पीते हैं, बट वो ठंड के गर्मियों के मौसम में वो मटके का ला करके उसमें पानी भर के उसकी पूजा जरूर करते हैं। करते हैं ना, कई लोग करते हैं। वो गर्मी की मौसम में वो मटके ला करके उसमें पानी भरते हैं। उस पानी को तो हम वही करते हैं जो ट्रेडिशनल वे से चला आ रहा है, isn't it? तो मिट्टी का वो बर्तन लेने के लिए भी हम कुम्हार के पास जाते हैं, और फिर ये इन्हीं लोगों को आइसोलेटेड कर दिया गया, मार्जिनाइज्ड। So they are discriminated and exploited by the so-called higher castes on one hand, and by the colonial power on the other, due to their monopoly over the resources. Yes, these Britishers, when they came to India, what they have seen that our society is having so much differences related to caste, custom, culture, everything. इसका उन्होंने फायदा उठाया। Yes, ma'am. ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी ये चीज हमें सिखा गया है ना, सब लोग सीख लिया है इन्होंने, कि जो गरीब लोग हैं वहीं से हम आतंकवाद का शुरुआत कर सकते हैं। जो सिक्किम और जो उस तरफ के लोग हैं, या फिर गरीब या स्लम एरियाज, वहीं पे जाएंगे और थोड़ा सा भी पैसा देंगे तो वो लोग हमारे कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब चाहे वो हमारे पाकिस्तान का कसाब ही क्यों ना हो, वो भी बहुत गरीब था। कसाब वाज वेरी पुअर। मैम उसके ऊपर एक फिल्म भी आया था 26/11, द अटैक ऑफ 26/11। तो ये गरीब लोगों को उन लोगों ने भी बनाया अपने रिसोर्स को लेने के लिए, उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया। अमीरों के साथ कहाँ किया था उन्होंने?
उनको तो No, ma'am. different अमीरों से different तो मैम titles सही से देते रहते थे। यस टाइटल्स Like, दे दिए थे जमीन हाँ जमींदार, सारा चीज yes गवर्नर, now जमींदार। Adivasis or native of land that is known as Adi is equal to origin and Vasi is equal to dwellers now were traditionally dependent on the forest for food fodder housing cattle and craft no doubt हमारे वो आदिवासी के बारे में आप सोचिए आपको पता होगा कि आदिवासी का भी रिवॉल्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ ट्राइबल्स जिसमें हमारा Yes, सबसे ma'am. पहले Yes, नाम यस किसका मैम। आया था किसका आया था Ma'am. हमारा बिरसा मुंडा। बिरसा Birsa मुंडा Munda बिरसा का ने आया था हाँ। तो Bengal ये revolt. these tribals actually they don't need anything because they are totally dependent on forest वो जंगल से बाहर कभी जाना ही नहीं देना चाहते थे वो कभी नहीं जाना चाहते थे तो उनको भी उन्होंने Yes. हैम्पर किया उनको भी उन्होंने मुद्दा बनाया डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फूड हाउसिंग क्राफ्ट जो भी चीज था वो जंगल में ही करते थे अपना लुक एट द पिक्चर ऑफ आदिवासीज डू यू आल्सो एसोसिएट आदिवासीज विद द कलरफुल हेड गियर्स decorated with horns and feathers chunky jewelries dance and drums and most people do यू कैन सी द आदिवासीज आज भी हम अपने देश के जब 26 जनवरी और 15 Yes, अगस्त ma'am. होता है तो झांकी जो Totally, yeah. निकलती है वो हमारे इन भारत के हम उस ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल्स हाँ ट्राइबल्स और ट्रेडिशनल लोग का ही Traditional. झांकी निकाला था हर जगह का फोक डांस को दिखाया जाता है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे Yes, ma'am. बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब स्टेट Language. का। Yes, ma'am. पंजाब है ना सारा ये सारी चीजें तो ये आदिवासी जनजातियां हैं इनका भी अपना एक है सारे चीजें now our knowledge about the Adivasi is very limited and we are still ignorant about their life and their sufferings and their contribution in enriching the India's diverse culture and heritage and gradually the Adivasis were losing their identity traditional occupation and way of life in the name of development and the end of their traditional lifestyle had resulted in their migrations marginalization and exploitation and it forced them to live a object poverty live in object poverty what happened हमने कभी भी आदिवासियों की तरफ झांकने का कोशिश नहीं किया कि वो कैसे होते हैं हैव यू मेट एनी आदिवासी चिल्ड्रन एंड यू नो मैंने मुझे याद है वन स्टूडेंट वाज देयर गौरी हिज नेम गौरी था और मैंने कुछ बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स का चीज बनाने के लिए बोला बड़े प्यारे प्यारे जूते बना के लिया उसने हाथ से अब और भी बहुत सारे चीजें ठीक है सो क्रिएटिव शी वाज and she was very intelligent पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जब हमारी मीटिंग होती थी गौरी नाम था पता नहीं अभी वो बच्चे कहाँ चले गए क्या है बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे आदिवासी दे आर वेरी इंटेलिजेंट यू नो दे आर वेरी इंटेलिजेंट ठीक है Yes, ma'am. दे मे नो हाउ टू मेक डिफरेंट थिंग्स यहाँ तक कि मैम वो लोग बांस सारे चीज मैम अपने से हैंड से बना करते हैं वो लोग कहीं खरीद के। बैम्बू देखा आपने बैम्बू बैम्बू यस Yes, ma'am. yes, ma'am. बैम्बू का कुपोल क्या बोलते हैं उसको सॉफ्ट वाले जो पत्ते होते हैं एकदम सॉफ्ट बैम्बू एकदम सॉफ्ट उसके भी वे लोग पिक्कल बनाना जानते हैं सो दोज हु आर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस इन द ट्राइबल्स दे व्हेन दे डू सेलिब्रेट क्रिसमस जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहते हैं 25 दिसंबर को और कैरल्स गाते हैं तो म्यूजिक और डांस का समय आता है तो वो अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं वो डांस नहीं करते जो अंग्रेज लोग करते हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं चर्च में भी क्योंकि उनका जो मुख्य चीज है वो तो वो भूल नहीं पाते तो आप कभी झांकने का कोशिश करिएगा ट्राइबल्स में दे आर वेरी नाइस एंड दे कैरी द ओरिजिनल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री हमारा देश का जो असली धरोहर है वो आप इन आदिवासी में ही देखिएगा दे आर रियल इंडियंस दे आर नोन एज Real Indians. real Indians why they are known as real Indians बोलो मैम बोला बिकॉज वो जल्दी अपने बदलाव ट्रेडिशन को नहीं कभी किया नहीं भले भूलते वो हमेशा अपने ट्रेडिशन के साथ रहते ट्रेडिशंस के साथ रहता है मैंने वही तो बोला कि वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपना लिया बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम डांस इन द चर्चेस
isn't it, with the traditional dance. Now, even in the post-independence era, Adivasis group faced a discrimination at the hands of the government and the industrialists and many other powerful forces. The forests in which they lived were cleared gradually for the timber, agriculture, mining project for wildlife sanctuaries, national parks, etc. And this had resulted in the problems such as the poverty, illiteracy, inhabitants and bondage of and exploitation and disease and unemployment etc. among the tribals. हमने देखा है कि हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के समय से रेलवे लाइंस बनना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, नेशनल पार्क्स बनाना, फॉरेस्ट को गवर्नमेंट के अंडर में लेना, तो इससे ये आदिवासियों को मजबूरन अपने जंगलों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, और फिर जब ये शहर की तरफ आए, वो आबादी में जब आए तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अपने रोज का जो वो जिस तरह से खाते थे, जंगलों का खाना पीना रहता था, उनका रहने का स्टाइल था, बहुत सारी चीजों में चेंज आया उनके। बट दे आर वेरी नाइस, यू कैन गो एंड मीट इफ एनी सच पीपल्स आर देयर। एंड उन लोगों को क्योंकि इतना आइसोलेटेड रहे ना, तो जब वो सब लोग के बीच में आए ना, तो उन लोग का नेचर बड़ा अच्छा होता है, उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम लोग को लोगों ने एक्सेप्ट किया। दे आर वेरी हेल्पफुल, isn't it? And sometimes also notorious, or many of them, they have taken the government jobs in defense, in railway, in many such places, isn't it? So this rich, now tell me one question, who are marginalized people? Ma'am, the poor people The economic who, SC, ma'am, ST, like OBC, SC, ST, OBCs, minority groups. माइनॉरिटी ग्रुप्स, यही तीन है। पुअर पीपल तो हम लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है पुअर पीपल। पुअर पीपल नहीं बोलना बेटा, SC, ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी, ओके? They are known as a marginalized people, isn't it? And I have given you the example of villages, tribals, the forest, and these people used to live there. But after many changes, they came to town. The rich culture of Adivasi is an important part of India's heritage. कैसे हमारा देश का धरोहर है, heritage कैसे है, इस पे अगर हम फोकस डालेंगे तो let us take the example of the Bishnoi, a tribal community of Rajasthan. एक tribal community है राजस्थान का, बिश्नोई का टाइटल आता है। The preservation of animal and vegetation has been a very religion to them since the 15th century. ये बिश्नोई जो है ना, जानवरों से बड़ा लगाव है इनको, पशु पक्षी जानवरों का ये बड़ा देख रेख करते हैं। वे देख नहीं सकते कि अगर कोई पक्षी लंगड़ के चल रहा तो वो उनका इलाज करने लग जाते हैं, कोई जानवर अगर वे देख ले तो उनका इलाज करने लग जाते हैं वे। They are known as the Bishnoi community of Rajasthan, and they are the protector of the and preserver of animal. I think so Shashank is not there. Shashank, are you there? शशांक क्लास में नहीं है मैम। हाँ, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, okay, so these people are there and they were preserver, the spiritual mentor, and you will page number 245. Shivangi, read na second paragraph. The rich culture of Adivasis is an important part of India's heritage. Let us take the example of the Bishnois, a tribal community of Rajasthan. The preservation of animals and vegetation has been a religion to them since the 15th century. Their spiritual mentor, Jambeshwar ji, formulated 29 tenets, Bis 20 plus Noi 9. This is the origin of their name. The tenets are related to personal hygiene, maintaining good basic health. See, I'll tell you, the things are that these people are known as a Bishnoi, and they are the preserver of this natural beauty and the animals and everything.
And at the same time, like the scheduled castes and the scheduled tribes have been also subjected to the social and economic injustice. Our government has launched many of such schemes and welfare for those people also, and provided more money making opportunities to the rich and higher caste, and the Adivasis have also mostly been given the option of manual labor ओनली। देखिए हमने क्या देखा कि अभी तक शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं कि जो भी हमारे ये हैं, इनको जब जॉब में भी ना लोअर जॉब दिया जाता था, ऐसा मानना था, मगर आज ऐसा नहीं है ना। अगर वो बातें पहले की थी कि उनको लोअर जॉब दिया जाता था, ये देता, आज ऐसा है क्या? क्योंकि मैं अगर ये प्रेजेंट चैप्टर का कब का प्रिंट क्या नहीं पता, मगर मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे चेंजेस तो आए हुए हैं। नहीं होते तो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, समझ सकते हैं आप, who are our president and prime minister, whether they are facing any problem? No. So गलत बात तो हम लोग बोल के नहीं जाएंगे ना। चेंजेस आया, शुरुआत के समय में था वैसा, अब धीरे धीरे बहुत चेंजेस आए, isn't it? अभी तो उनको बहुत सारे रिजर्वेशन मिला है। अभी हम माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। Along with the safeguarding the interest of SC, ST and OBC by the Constitution of India, also safeguard the interest of the minority like Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, जितने भी हिंदुओं के नीचे लोग हैं ना, उनको हमने minority में माना है और उनको हम help कर रहे हैं। Government on the other basis of the race, religion and language, their number is much less than the majority community, and hence they are also known as a minority communities. Muslims are the largest single minority community in India. सबसे बड़ा community में हमारा मुस्लिम है और उनको तो हमने कितना रिजर्वेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? When they are doing their namaz near the station and there is a huge jam after the school time, in 5 बार नमाज पढ़े जाते हैं, जिसमें अगर वो दोपहर के समय अगर शुक्रवार के दिन नमाज जो पढ़ते रहते हैं तो, और ऐसे भी अंदिना पढ़ते हैं, तो कभी क्या आप उसको रोकने गए? सिखों को हमने बोला कभी क्या आप हेलमेट लगाओ? नहीं। तो हमने कितना फ्रीडम दिया हुआ है, हमने बहुत सारे फ्रीडम दिए हुए हैं। सॉइल पॉल्यूशन का जहां तक बात आता है तो हमने कभी भी अजान पढ़ने में किसी को बोला नहीं कि नहीं भाई आप लोग अजान मत पढ़िए। जॉब में भी हमने दिया है, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, हमने कहीं भी मना नहीं किया। हमने हर जगह हर प्रयास, हर तरह की चीजें सरकार ने दिए हुए हैं ना। द बैकवर्डनेस स्टिल दे आर बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड है? देखिए, बैकवर्डनेस अमंग मुस्लिम इन कंट्री इज एविडेंट and they are behind the majority community both educationally and economically. क्यों economically और educationally still they are backward? The Muslim community, a large part of the Muslim population suffers from the backwardness due to the upstanding from the mainstream. That is, क्यों है? क्योंकि education की कमी है। एजुकेशन की कमी है ना। आज भी लोग मस्जिदों में जाना पसंद करते अपना प्रारंभिक शिक्षा के लिए। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते थे ना, बहुत पहले शुरुआत की शिक्षा लेने के लिए लोग मंदिरों में जाते थे, पाठशाला हुआ करते थे। आज भी हमारे मदरसाओं में जाते पढ़ाई होती है। आई थिंक सो माई टाइम इज ओवर। तो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हमारा यही है और हमें देखना है कि कितने रिलीजियस कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में। 249 पेज में देखेंगे हमारा हिंदुओं के बाद में मुस्लिमों की संख्या, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड अदर। ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, जिसमें हमको देखना है कि सेक्युलर कंट्री है हमारा। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, laws of the government safeguard the interest of providing the opportunity to all the Indian. हाँ, tell me, ask. मैम, ये इस संडे जो प्री बोर्ड होगा उसमें फुल बुक आएगा अकॉर्डिंग टू। मैंने कितनी बार बोला है, मैंने सिलेबस दिया है, स्नैप में भी दिया, SST वाले चीज में ग्रुप में भी दिए और हमारे हर क्लास का भी ग्रुप में दिया। और जो ब्लैक से घिरा हुआ डिलीटेड पोर्शन वो नहीं आएंगे, बाकी सारे चीज आ रहे हैं रिवाइज वाला। मैं आज फिर से करने वाली हूँ, क्या मैं लिख के दे दूं?
टाइप करके? नो मैम, नो मैम। मैम है ग्रुप में। ग्रुप में है? One thing Shivangi can do, if you will have the time, you just write it down. Only the chapters which are coming. Revise chapter and don't write that black portion. Leave it there. Okay Or मैम। otherwise, if you want to write down project method topics. And then that chapter you will write. Otherwise, don't write it. Only those chapters which are coming, that will you write. And just give me. Okay? Okay मैम। Okay, now thank you, all of you. We are going to end the class. Bye-bye. This chapter is completed. If you want me to do the question answers or the topic, the MCQ and all, we will get ready tomorrow, and tomorrow we are going to safeguard the marginalized. अब हमको उनको safeguard कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पॉलिसीज हमने बनाए उनके लिए, ठीक है? बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय। थैंक यू मैम। क्या?